ऐसी भाषा इस्तेमाल करना उनको शोभा नहीं देता। हम लोगों ने गुजरात के विकास के ऊपर प्रश्न उठाए, उसके ऊपर वो कभी चर्चा करने को तैयार नहीं है। सियासी लोग बस जाए तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। Exactly happened according to you? Barkha, we were not canvassing for votes at all. In fact, we were here like we are standing. That's how we were. This is the gate for one of the gates for Banaras. Let's just pan the camera and show you. That's the gate of the Kashi Hindu Vishwavidyalaya, and this is where the campus of the historic Banaras Hindu University, of course, the roads lead in from here. So a lot of students spotted me and Gul and all and came to photographs, talked to us, and they invited us to come inside to their hostels. After that, we had tea. The hostel, couple of hostels, the kids congregated, they collected. Yeah. They started talking to us, and obviously the obvious topic is elections. So we had a nice interactions, very interesting interactions. Then I was coming out, because Gul had gone to the girls' hostel, I was in some boys' hostel. I was coming out, the whole hostel seemed to come out with me. They wanted to probably see me outside or they wanted to come with me. I don't know, we were walking. Yeah. Suddenly 3 guys came up, they overtook us. I saw one of them had a huge lathi. There were 2 others with him. And who were they? I don't know. Did they identify themselves? No, they didn't. Then they just started threatening us and said, what are you doing here? Get out of here. And I said, bro, I was invited here and I'm on my way out. We don't want any trouble. He swung at me. There's footage of it. Some student has shot it and we are going to circulate it. He swung at me. He missed. He swung at the students. At which point the students got really aggressive because that's when they're saying, you're attacking IIT, BHE students. This guy was an outsider apparently. And they had lathis, actual lathis. Yeah. So then the third time he picked up, the students came between me and him, held the lathi, took it away from him, and chased him away. I am so proud of BHU students that they did not let harm come to me. They did not harm that guy. And how's Gul? Gul is good. She's gone back to the hotel. I have not been able to meet her, unfortunately. I've heard reports of, no, she was not attacked or beaten up. Some boys were probably misbehaving with her. I'm not clear on the details. You're not sure of the details? No, I'm not. इसी बनारस के लोगों को मैंने जून चौपाटी पर शिवसेना के गुंडों से पिटते हुए देखा। पूछा जाता था कहां से आए हो? जौनपुर से निकालो मारो। कहां से आए हो? भदोही से निकालो मारो। इस बार आए मोदी जी तो उनसे पूछना कि प्रधानमंत्री बनते समय 7 सीटें जो शिवसेना की से लेकर रहोगे और बनारस में हमारा आदमी, बनारस का आदमी बंबई में पीटा जाएगा तो उसके साथ खड़े होंगे या अपनी सरकार बचाने के लिए खड़े? बताओ किसके साथ खड़े हो? किससे मुकाबला है आपका? नहीं, त्रिकोणीय तो कहाँ है जी। अब अजय राय जी तो कहीं है ही नहीं। तो आप किसको मानते हैं नंबर 1? मुझे लगता है कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी से है। और अब जो पिछले 3 दिन से माहौल बदला है, अब तो सारे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं। नहीं दिखाएंगे तो आप बड़े अच्छे हैं। हम साफ सुथरे हैं और बाकी सब चोर है। वो सब कांग्रेस माफिया है, बीजेपी माफिया है, कम्युनिस्ट चोर है, हम अच्छे हैं। कल रात को मैंने 1 घंटे एक शो किया। मेरी तबियत खराब होने के बावजूद मेरा इरादा नहीं था कल शो करने का। मैंने 2-3 बातें उसमें दिखाई। पहली बात तो मैंने केजरीवाल जी को बताया, जर्नलिज्म में यहां तक पहुंचने के लिए हमने बहुत पापड़। केजरीवाल जब लोकपाल की लड़ाई लड़ रहे थे तो कांग्रेसी कहते थे अरविंद केजरीवाल आरएसएस और भाजपा से मिले हुए। जब अरविंद केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा किया तो कांग्रेसी कहते थे अरविंद केजरीवाल तो भाजपा से मिले हुए हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का खुलासा कर दिया तो भाजपा ही कहने लगे अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस से मिले हुए। जब दोनों का काम नहीं चला तो बोले नहीं साहब ये तो उद्योगपतियों से मिले हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया तो ये बेईमान कहने लगे कि ये बड़े निकम्मे हैं, किसी से भी नहीं मिले हुए हैं, किसी को भी सूली पे लटका सकते हैं, कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तमाम तरीके अरविंद केजरीवाल जरूर झांक कर देखें ताकि उन्हें अपने राजनीतिक कद का सही अंदाजा हो जाए और वो किसी तरह की गलतफहमी में ना रहे। अरविंद के मेरा जी न्यूज के चैनल से हाथ जोड़ के निवेदन है
वो गलत सलत स्टोरी चलाना बंद करें। एक मेरा फर्जी किसी ने ट्विटर अकाउंट बनाया है और वो ट्विटर अकाउंट वाला अन्ना जी को गालियां दे रहा है और कल से ये ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं जी न्यूज वाले, अरविंद ने अन्ना को गाली दी। मैं कभी अन्ना को गाली नहीं दे सकता अरविंद जी इससे। और ये लोग जी न्यूज वाले बंद करें, नहीं तो ऐसा लगेगा कि सुभाष चंद्रा जी का जो स्कैंडल हुआ था अरविंद जी हमने कर दिया है सर, हमने कर दिया है। उसके बावजूद भी अगर जी न्यूज वाले नहीं मानेंगे तो जी न्यूज के खिलाफ भी FIR कराएंगे, जी न्यूज के खिलाफ भी मानहानि का दावा करेंगे। कहाँ कराया आपने FIR? करवा दिया हम लोगों। कहाँ कराया? दे देंगे आप लोगों कि इस देश में ईमानदारी की राजनीति जीतती है या दलाली और बेईमानी की राजनीति जीतती है? क्योंकि मोदी और राहुल गांधी और मोदी दोनों के दोनों एक ही तरह की दलाली की राजनीति के प्रतीक बन चुके हैं हिंदुस्तान में। दोनों के दोनों किसानों की जमीन छीनते हैं और एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने तक में पैसा खाती है इनकी सरकारें। ऐसी राजनीति का प्रतीक बन चुके हैं। तो बनारस को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। Arvind has shot the messenger. For the last 4 years, I fought like an obedient soldier for the movement. Now I have been systematically marginalized because I offer a voice of dissent and constructive criticism. Stinging criticism by one of Aam Aadmi Party's founding members, Shazia Ilmi, who became the first high-profile exit from the party after the drumming in the Lok Sabha elections. Blaming the party for the lack of inner party democracy, Ilmi said the Aam Aadmi Party had become sensationalist and was prone to take impulsive decisions. One strongly believes that instead of wasting our collective energy in this bail-jail imbroglio, Arvind should actually be spending time with cadres, candidates, volunteers, critics et al. After New Delhi, Bangalore. मैंने अरविंद से मंच पर बैठे बैठे यही कहा कि भाई सीनियर लीडर हो, अभी तक 5 बार पिट चुका हूं, जब तक 6 बार नहीं पिटोगे नेता नहीं मानूंगा तुमको। होगा। काशी की गलियों की चौथी प्रजाति घूम रही है, जो कहा जाता है इनसे बचे तो सेवा काशी। वो प्रजाति घूम रही है, लेकिन हम ऐसे ही लड़ेंगे, हम ऐसे ही पिट कर लड़ेंगे और तुम्हें बताएंगे कि मुसल्ला रखते हैं, सहबाओ जाम रखते हैं, फकीर सबके लिए इंतजाम रखते हैं, तुम्हारा भी इंतजाम है। Yadav and Manish Sisodiya, who were forcibly removed late at night. Manish Sisodiya tweeted that detained from Tihar and kept at a police station. The SHO has been ordered to keep me detained till tomorrow morning, but not able to tell the charges against me. Gadkari had filed a defamation case against Kejriwal in February for calling him corrupt. Kejriwal was asked to pay a bond of 10,000 by the jail, something he refused, and he is now likely to remain in jail at least till Friday when the court hears the case next. Our workers have planned more protests today. कवि ने लिखा कि किस रावण का शीश उतारूं और किस लंका में आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। देखने से इंकलाब नहीं आता, इंकलाब आता है नौकरियां छोड़ने से, इंकलाब आता है लाठियां खाने से, इंकलाब आता है 15 दिन भूखे रहने से, इंकलाब आता है अपनी जान को जोखिम में डालकर बिना सुरक्षा निकलने से, और इंकलाब आता है अंबानी जैसे बड़े दैत्य के सामने सीना लगाकर खड़े करने से। चुनाव में मुद्दे बदल गए हैं, मैंने सोचा intact. We'll have to wait and watch how the strategy plays out. But clearly, just a day after Aam Aadmi Party even approached the Lieutenant Governor, the LG in Delhi on planning to form a government of any sorts and also asking the LG to delay the elections, a stance which is quite opposite to what they'd asked for earlier. This has clearly come as a political stunt, as many are calling it. Even Aam Aadmi Party supporters since yesterday weren't really people from the public. They were all Aam Aadmi Party enthusiasts and volunteers. We also know very categorically, and important to point at this point, is that Gargi, a lot of people post the MLA meeting which took place with the Aam Aadmi Party recently after the debacle in the national capital, a few MLAs did go up to the party leadership asking them to form government. But, however, they did not get support of the Congress party. Aam Aadmi Party officially says that they will not be interested in forming a government in coalition with Congress or the BJP. But clearly, I still admire Arvind Kejriwal for changing the nature of Indian politics. He must show grace in defeat and focus on building the party brick by brick. He must persist. India needs Aam Aadmi Party now that we do not have a national opposition party.
After starting a से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश की राजनीति पे कब्जा कर लिया है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी अजीत सिंह, चरण सिंह चौधरी, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, सुखपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, राबड़ी यादव, लालू यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बिजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, कानी मोई, करुणानिधि, स्टालिन, अनागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद पाटला, कहाँ पार्टी बताओ। काशी के लोगों के साथ जो संबंध बना है, ये संबंध हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। और आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पे शायद अभी लीड कर रही है, 4 सीटों पे पंजाब में लीड कर रही है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। हम लोगों के लिए पहला चुनाव था, लेकिन दिल्ली में थोड़ी सी निराशा हुई है। दिल्ली में हम अच्छा कर सकते थे। Do you think Delhi is focused too much on the larger picture? Is it focusing too much on the larger picture, going contesting on so many seats? Was that a mistake, Arvind? मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, ये चुनाव हमारे नहीं है। हमारे पास तो ना पैसा था ना रिसोर्सेज हैं। जैसे दिल्ली के अंदर भी 70 सीटों पे लड़े, तो वो तो जनता के चुनाव थे। ये भी हम हमेशा सोचते हैं, हमने तो एक प्लेटफॉर्म दिया इस देश को। ये चुनाव हमारे नहीं है, ये चुनाव जनता लड़ेगी। तो जहाँ जहाँ जैसे अब किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि पंजाब में 5 सीट आ सकती हैं, 4 सीट आ सकती हैं, किसी को उम्मीद ही नहीं थी। तो हमने तो एक प्लेटफॉर्म दिया है। जो जीत या हार जो है वो हमारी नहीं है। और ये लड़ाई सच्चाई पंजाब में so much support